The directives imparted by the chair, the same honored matters raised with permission. Shri Subhash Chandra Bose Pilli demand for a comprehensive national farm mechanization policy. Shri Subhash Chandra Bose Pilli, please go ahead. Respected sir, thank you, sir. A substantial portion of India's workforce relies on agriculture, and it remains the lifeblood for most rural communities. In order to inaugurate a new agricultural revolution and boost the productivity, the mechanization of farming must be prioritized, particularly for small and marginal farmers. Currently, there is no nationwide survey to assess the level of the mechanization in Indian farming. I urge Honorable Minister of Agriculture and Farms Welfare conduct such a survey at the earliest opportunity. A national policy for the standardization of farm equipment is urgently needed to ensure interchangeability at the manufacturing stage. Standardized parts would make production of farm equipment easier and more efficient. The government has established custom hiring centers and farm machinery banks that allow farmers to share equipment, benefiting around 100 to 200 farmers per center. I request the government to ensure that these centers are established at the Gram Panchayat level and such schemes are widely publicized and popularized among the rural masses. The submission on agricultural mechanization has been integrated to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana as of September 2022. The government should reconsider this decision to make sure that it does not undermine the provision of affordable, high-quality equipment to small and marginal farmers. Along with this, to promote mechanization, the government must guarantee access to power for small and marginal farmers. I urge the government to consider these concerns and take appropriate steps to formulate a comprehensive national farm machinery policy aiming for 75% mechanization by 2030. Thank you, sir. Thank you. Dr. Sikandar Kumar, demand for provisions of escalators and lifts for the old and disabled devotees at pilgrimage sites in Himachal Pradesh. धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश भर के पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों व शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, मैं हर साल लाखों श्रद्धालु माँ ज्वाला जी, माँ चिंतपूर्णी, माँ नैना देवी जी, माँ चामुंडा देवी जी, माँ बगलामुखी जी, बाबा बालकनाथ जी जैसे अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शनों हेतु आते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर मंदिर ऊंचाई पर स्थित होते हैं और उन मंदिरों तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि इन मंदिरों में अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसलिए इन मंदिरों में अक्सर अत्यंत भीड़ भी होती है। ऐसे में विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों व शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने व दर्शन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट का प्रावधान किया जाए, ताकि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी मंदिरों में दर्शनों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। माननीय श्री A.D. Singh, concern over high cancellation and rescheduling charges on airlines tickets. Honorable Deputy Chairman, sir, more important, I don't think that this 0 hour I want to avail
the situation of माननीय the चेयरमैन साहब ने आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति दी नहीं, है। मगर इसके जो अलावा आप- महाकुंभ में जो इसके ट्रेजेडी अलावा- हुई है इसके अलावा उस आप पर किसी चर्चा और होनी विषय पे चाहिए। बोलेंगे, please। ये आप सदन सब्जेक्ट पे बोले तो मैं allow करूंगा आज पर मैं रूल्स। उस सब्जेक्ट नहीं, उस सब्जेक्ट पे बोलने का मुझे आज पर कोई रूल्स- इच्छा नहीं है। आज पर आज जो thank you। जो पिछले चंद माननीय दिनों में श्री ए. रहीम, concerned over increasing human-animal conflicts in the country. माननीय श्री ए. रहीम, please. You have to speak Sir, on the thank you, sir. subject. Sir, I would like to bring the attention of this Guest House. The most important issue, human-animal conflict. Sir, I stand here today for the survival of the people. Sir, the people who are struggling with the human-animal conflict. Without any doubt, I can clearly say that the sole culprit behind this human-wildlife conflict is the union government. Sir, before I go into the details, sir, so the government must avoid this position and government must listen us and government must involve the issue and solve the matter. This is I demand. So, moreover, I would like to raise the issue, which is our comrades and our all other. Sir, the district members are protesting here. May we speak on the subject? That will not go Sir, on. yes, this is You have to important. speak. Also, the issue is also important, sir. So, Subject: Dr. John Britas, Sri Santosh Kumar P, Sri J.B. Mathur Hussain, and Sri Jose K. Manihaj Associated. Please. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade, concerned over accidents caused by navigation error of Google Map application. आदरणीय सभापति महोदय, भारत में गूगल मैप के गलत होने के कारण दुर्घटना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। भारत के केरल में हाल ही में 2 29 वर्षीय डॉक्टरों की दुखद मौत हुई जब उनकी कार गूगल मैप्स द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हुए पेरियार नदी में गिर गई। यह घटना इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे तकनीकी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता कभी-कभी खतरनाक परिणाम दे सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी में जा रहे 3 लोगों भी इस तरह की घटना का शिकार हुए। वे गूगल मैप के निर्देशों का पालन कर रहे थे जबकि उनकी कार एक नदी में गिर गई। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि गूगल मैप्स की जानकारी हमेशा सही नहीं होती है, कभी-कभी यह गलत दिशा में ले जा सकता है। बिहार का एक परिवार भी गूगल मैप्स के माध्यम से गोवा का रास्ता पूछने के बाद अंततः कर्नाटक के जंगल में पहुंच गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी गूगल मैप्स की जानकारी भ्रामक हो सकती है। आईटी अधिनियम की धारा 43A में यह प्रावधान है, सभी संस्थाओं को अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी प्रकार की अनाधिकृत पहुंच या डाटा के दुरुपयोग से बचा जाए। यदि किसी संस्था जैसे गूगल मैप के पास तकनीकी क्षमता है लेकिन यह जानबूझकर या लापरवाही से डेटा की सटीकता और सुरक्षा को बनाए रखने में असफल रखती है तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गूगल मानचित्र विश्व स्तर पर नेविगेशन का एक प्रमुख साधन है, लेकिन सभापति महोदय, भारतीय स्टार्टअप और कंपनियां वर्तमान में तेजी से विकास कर रही है। यदि ये स्टार्टअप और कंपनियां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ अगर सहयोग करे तो उन्हें अत्याधुनिक तकनीक और एक व्यापक डाटाबेस प्राप्त होगा। इससे भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित हो सकता है जो गूगल मैप जैसे वैश्विक सेवाओं पर निर्भरता को कम करेगा। भारतीय कंपनियों के पास अपने देश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मानचित्र और डेटा होंगे जो स्थानिक जरूरतों और संदर्भों के अनुसार अनुकूलित होंगे। भारत में गलत गूगल मैप के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बनते जा रही है। तकनीकी विकास के साथ लोगों को अपने स्मार्टफोनों पर गूगल मैप्स का उपयोग करके यात्रा करने लगे हैं। हालांकि कभी-कभी गूगल मैप से गलत जानकारी या गलत दिशा निर्देशों के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है। भारत सरकार को इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके
ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं भारत सरकार को ये विनती करता हूं कि हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और हमारे बहुत सारे तरुण जो भाई बहन है वो अपने स्टार्टअप के माध्यम से एक अत्याधुनिक तकनीक और एक व्यापक डेटाबेस के माध्यम से गूगल मैप की जैसी चीजें हम हमारे देश से स्वदेशी चीज अपना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री मानस रंजन मंगराज, कंसर्न ओवर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। माननीय श्री मानस रंजन मंगराज, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री राघव चड्ढा, कंसर्न ओवर डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। माननीय श्री राघव चड्ढा, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री नरेश बंसल जी, डिमांड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ शहीद राजा विजय सिंह मेमोरियल, कुंज बहादुरपुर, उत्तराखंड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। धन्यवाद उपसभापति जी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कुंजा बहादुरपुर ऐसा स्थान है जहां पर 1857 की क्रांति से भी 3 दशक पूर्व क्रांति हुई। वहां के राजा विजय बहादुर सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह ने 1000 युवकों की सेना इकट्ठी करके अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया, उनकी मालगुजारी बंद की, उनका खजाना लूटा, सब प्रकार की ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने कुंजा बहादुर पर गांव पर अत्याचार किए, क्योंकि उस समय के राजा विजय सिंह का साम्राज्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कुमाऊं, गढ़वाल, सहारनपुर तक फैला हुआ था। उन्होंने साहस का परिचय दिया, जिसमें जब आक्रमण किया अंग्रेज़ों ने तो 40 ब्रिटिश सैनिक भी मारे गए और सैकड़ों नौजवान अपने मारे गए। अत्याचार हुआ। गांव में केवल गर्भवती महिलाएं ही बची थी, शेष सब पुरुषों को मार दिया गया और दहशत पैदा करने के लिए सबको वहां पर पेड़ों पर लटकाया गया। 2 सैनिकों को देहरादून जेल के सामने पेड़ पर लटकाया गया। सैकड़ों वीर गुजरों ने अपना बलिदान दिया। किले पर कब्जा करके अंग्रेजों ने कत्लेआम मचाया। मैं सोचता हूं कि आज जो हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका इतिहास तो क्रूर अत्याचारों से भरा पड़ा है। यह विडंबना है कि हमारे इतिहास में कुंजापुर बहादुर जैसी अनेक शौर्य गाथाओं को भुला दिया गया। इन वीरों के शौर्य के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। हमारा इतिहास बहुत सीमित है। वास्तव में विदेशियों द्वारा लिखित, विदेशी दृष्टि से लिखे गए इतिहास को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीयों की मेधा, प्रतिभा, शौर्य और वीरता को गौण कर दिया गया। देश के इतिहास में राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में, भागों में ऐसे अनेक संदर्भ हुए जिसमें स्थानीय जनता ने स्थानीय नायक के नेतृत्व में आताताई आक्रांताओं से अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता, संस्कृति और संपत्ति को बचाया। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे अनेक विद्रोह हुए जिसमें स्थानीय लोगों ने आक्रांताओं से लोहा लिया। यह जरूरी है कि स्वाधीनता के लिए इन संघर्षों को देश के इतिहास में समुचित स्थान मिले। ये हमारे न केवल पाठ्यक्रम का भाग बने, बल्कि स्थानीय मातृभाषा में बच्चों और युवाओं को उससे परिचित कराया जाए, तभी हमें अपने इतिहास को। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा, नीड फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा में समानता पर बोलने का अवसर दिया। आपका आभार। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए समानता के वादे के मूल में है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संतुलित कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 72% पुरुष थे, जिसमें 1,25,000 से अधिक पुरुषों ने अपनी जान दे दी, जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 47,000 थी। वर्ष 2014 से 2021 के बीच
पुरुषों और महिलाओं की आत्महत्या के अनुपात में काफ़ी वृद्धि हुई और इस दौरान 107.5% अधिक पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं को आत्महत्या का कारण बताया। हमारे कानून में ने महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण से बचाने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का अभाव चिंता का विषय है जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल में ही बिहार के निवासी अतुल सुभाष के मामले ने इस समस्या को उजागर किया है। अतुल सुभाष बंगलौर में काम करते थे। आरोप उन्होंने यह लगाया कि उन्हें उनकी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के झूठे आरोप में फंसाया गया, जिससे दुखद रूप में उन्होंने अपनी जान दे दी। यह घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए पर्याप्त कानूनी और भावात्मक समर्थन नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। अगर सिस्टम की कमी के कारण एक भी व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है। झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सच्चाई को बनाया जा रखे। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। माननीय श्री नीरज डांगे जी डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ 18% GST ऑन इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर सीनियर सिटीजन्स, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती संगीता यादव जी demand to take more steps for empowerment of rural India by transforming villages into vibrant centers of growth and opportunity। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। माननीय उपसभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। ग्रामीण भारत महोत्सव को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल ग्रामीण भारत के लिए की समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही विकसित भारत 2047 के जो सपनों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सभी लोग देख रहे हैं, उसमें भी एक अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पर व्यय, माननीय उपसभापति जी, आजकल 50% से भी कम हो गया है और अब ग्रामीण परिवार अन्य आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो रहा है। माननीय उपसभापति जी, जब मैं 0 आवर लगा रही थी उसमें मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई कि एक डिमांड जो मेरी पहले से माननीय वित्त मंत्री जी को मैं आभार प्रकट करूंगी कि मुद्रा बैंकिंग की सीमा को बढ़ाने के लिए मुझे डिमांड रखनी थी, लेकिन वो बढ़ा दी गई। इसके लिए मैं आपको आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से 2 और छोटे निवेदन रखना चाहती हूँ। एक तो ग्रामीण क्षेत्र की ये जो पहल चल रही है, इसमें छोटे किसान और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही दूसरी डिमांड है मेरी, वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हमें और सशक्त कदम उठाने जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, नीड टू एड्रेस द क्राइसिस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। Thank you, Deputy Chairman, sir. This is a very, very important subject. Not alone India, but the entire world is facing. But coming to our country, we are generating almost 3.5 million tons of plastic waste every year, as per CPCB estimates. But however, from the other sources, it is more than 9 to 10 million tons every year this waste is generating. But unfortunately, only 60% of it is collected, and out of that also only 40% is recycled. So where is this balance going? It is just ending up into landfills, rivers, oceans,
unfortunately very sad situation. But the point that we see, sir, most of this is handled by unorganized sectors. So we now need to bring in a real solution to this problem. We must bring organized sector also to come and work on this plastic menace. But keeping this aside, sir, the environmental challenges that we are facing because of this pollution, most important, microplastic pollution. This is actually found in water, soil, and in human bodies. Also, it is found in oceans. 0.6 million tons every year around India is entering into ocean. Air pollution, that is another major problem. Burning of plastics releases toxins, and they are contributing to a lot of air pollution control and respiratory diseases. Soil and water contamination. Unfortunately, these chemicals, they leaches into the water and also soil, which is making it really very infertile, and water is really contaminated, for which treatments are also very costly. Economic and resources loss. Unfortunately, India, we are importing more than 80% of our crude, and plastic is nothing but crude. We have to see that, the plastics are properly recycled, and with that, at least 50,000 crores of rupees we can save every annum by recycling of these plastics. Also, sir, can we ban this? No, it's not possible. It is very essential for our economy. So we have to see alternatives. But when we see alternatives, the cost effectiveness is not coming. Biodegradable or paper-based alternatives are more expensive, less durable, and also need more resources, water and other resources. So we certainly have to put some research around this to bring in control on this. We also need to bring in a circular economy approach instead of banning. So some of the solutions are highest focus on IEC, segregation at source, scaling the recycling, chemical recycling, resource recovery, market linkages for plastics. Your time is over. Your time is over, sir. Thank you. Time is over. Mani Shri Muhammad Nadimul Haq, issue of automatic deactivation of SIM card after non-uses for 90 days. Not present. Mani Shri Anil Kumar Yadav Mandadi, demand to include the Musi River in Hyderabad as part of the country's major river rejuvenation project. Mani Shri Anil Kumar Yadav, not present. Dr. Bhim Singh Ji, concern over poor enrollment of girl students in joint entrance examination for admission in Indian Institute of Technology. Dr. Bhim Singh. माननीय उपसभापति महोदय, मैं गर्ल स्टूडेंट्स की समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही अग्रणी है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जोर इस पर बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चलाया, यानी कि गर्ल छात्राएं और प्रौद्योगिकी दोनों का महत्व है। ऐसी स्थिति में जब हम जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, इस पर नज़र डालते हैं, तो गर्ल स्टूडेंट्स की समस्या पर हमारा ध्यान जाता है। हम नामांकन देखते हैं, नामांकन तो अभी भी छात्राओं का नामांकन 15 से 20% के बीच में वैरी करते रहता है। मैं समझता हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसलिए सरकार को कुछ विशेष उपलब्ध करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्राओं का, गर्ल स्टूडेंट्स का नामांकन हो सके। तो मैं चाहता हूं कि कोई विशेष योजना चलाई जाए ताकि जो छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहती हैं, उनको अधिक से अधिक क्वालिफाई कर सके, ऐसा कोई इंतजाम हो। बस मैं यही करना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर भीम सिंह जी।
Mani Sri Eram Venkat Subba Reddy, demand for setting up Directorate of Census Operations in Andhra Pradesh. Mani Sri Eram Venkat Subba Reddy, not present. Mani Sri Sanjeev Arora, need to address the problems faced by bicycle manufacturing sector. Not present. Mani Sri Samik Bhattacharya ji, demand to operationalize Ashok Nagar oil field in West Bengal. Sir, after 65 years of relentless efforts from the geophysicists, scientists and the oil field workers, finally ONGC and Oil India Limited discovered oil in Ashok Nagar, North 24 Parganas district. It was discovered in the year 2018. And after that, sir, 13 letters wrote by ONGC to the state government, 2 from the government of India, and 4 from the other authorities. This matter has been raised in the Eastern India Development Council also. But most unfortunate thing is that West Bengal is doing nothing. Previously, they are asking for a PML for 5 square kilometers. But the last year, 5th November, ONGC wrote another letter. They want 99.94 square kilometers for the operation of the oil extraction. The most unfortunate thing is that the ONGC and oil, they have already invested 1,045 crores in that particular oil field. Both are government enterprises companies. They are answerable to the shareholders also. But the West Bengal government is giving, sir, what is happening? Sober Moil, Mining Ore India Limited, GSI has already submitted a report about the huge presence of manganese ores in West Midnapur, Pakuda and Jharkhand. But it requires joint operational action. No one is doing nothing. कितना दिन चल सकता है सर ये? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हर साल अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन हो जाए वहां से तो 8,000 करोड़ रॉयल्टी मिलने वाला है. The entire socio-economic structure of that locality will be changed in no time. But most unfortunate thing is that a government who is very much in the power, they don't have any faith on this federal structure. They are not ready to intervene into any central government program. कितना दिन ये राजनीति चल सकते हैं? आज पूरा पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार का जितना सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट चलने नहीं दिया जा रहा है. और पश्चिम बंगाल की जो आम Your time is over, sir. Thank you. Thank you. Mani Sri KRN Rajesh Kumar, request for expedited approval and funding for upgrading NH44 stretch from Dharampuri to Namakal from 4-lane to 6-lane. Mani Sri Rajesh Kumar, KRN Rajesh Kumar, not present. Mani Sri M. Sanmugam, need to formulate comprehensive plan to fill up all vacancies and to generate more employment opportunities in the country. Mani Sri M. Sanmugam, not present. Mani Sri Maharaja Sanja Oba Lesamba, demand for speedy completion of Khosanganj Imphal and Jibram Imphal railway line project in Manipur. Thank you, sir, for giving me this opportunity, sir. Though Jiribam Imphal
railway line project started around a decade back. It has not been completed yet. Only Jiribam to Khongsang portion has been completed, but the remaining portion that is from Khongsang to Imphal is still incomplete due to many reasons. Sir, Manipur being a hilly state, our only connectivity with other states depend on national highways and airways during rainy season. Bringing in of essential commodities and traveling outside along the national highways are facing hardship due to bad roads, landslide, and extortion by different armed groups, etc. Besides this, bans and economic blockades by different groups as a means of giving pressure to the government to meet their demands are becoming their normal practice. The reason why I urge upon this demand to the government is that during this ongoing crisis, around 20 lakhs Valley people could not travel outside the state through national highways, and they are facing financial problems for traveling by flight due to high prices of airfare. Moreover, the price of good grains, food grains and other essential commodities are also rocketing sky high. So railway has become the only alternative means to resolve all these problems in spite of state and central government's effort to curb the situation in the state and along the national highways. Unprovoked firing, attacks, killings and abduction of innocent peoples and extortion along the national highways are being carried out to save the lives and the properties of the civilian. Many brave Jawans have become martyrs and many are injured in the hands of these illegal immigrants. They are really waging wars against the nation with the help of foreign hands or countries. So instead of doing impeachment policy, and before it is too late, the government of India with an iron hand should act upon these foreign narco-terrorists or separatists to restore normalcy in the state as well as along the national highways and complete the Jiribam-Imphal railway line project positively by 2025 or at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Mania Srimati Mausam B. Noor requests to release pending funds to the state of West Bengal used for key welfare and development schemes such as Manregas. Not present. Mani Sri Sanjay Singh need to implement 5th schedule in hilly regions of Uttarakhand. Not present. Srimati Priyanka Chaturvedi concern over poor implementation of regional connectivity scheme Udan. Not present. Dr. Ashok Kumar Mittal need for insurance sector reforms to ensure fairness and accessibility. Not present. Mani Sri Mahendra Bhatt concern over the problems faced by ASA workers appointed under National Health Scheme. महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी आबादी को स्वास्थ्य तथा सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने सहित बच्चा जच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, जब से इस मिशन को प्रारंभ किया गया तब से जहां ग्रामीण को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। महोदय, इनके कार्यों को देखते हुए आज भी इन्हें न्यूनतम वेतनमान से वंचित रखा गया है। इन्हें मात्र 4,500 रुपया मासिक प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है, जो कि इनके कार्यों को देखते हुए काफ़ी कम प्रतीत होती है। अनेकों राज्यों ने इन्हें वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इनमें भी केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां इन्हें 5,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के महत्व को समझते हुए इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में सम्मिलित किया जाए, जिसमें राज्य सरकार का अंश भी सम्मिलित हो। धन्यवाद माननीय महेंद्र भट्ट जी। माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, issuance of proposed mega power project by China on the Brahmaputra River. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to raise the very important issue related to the people of the northeastern region, people of the Assam. Brahmaputra, the river Brahmaputra, is the lifeline of us. And Brahmaputra Valley civilization is one of the ancient civilization of our country, sir. Now, we are very much concerned
because due to the proposal initiative took by China to build world's largest mega power generation project on the river Brahmaputra. It will be great treat to our civilization, Brahmaputra Valley civilization. It is the great treat to our culture, and it will be the great treat to the socio-economic life of the people of Assam, sir. Sir, source of river Brahmaputra started from China. And China now decided to construct world's largest electricity power project on the river Brahmaputra, sir. Sir, if they really going to do it, sir, they try to divert flow of the river Brahmaputra, water of Brahmaputra towards their side, sir. If they follow it and they divert, the water follows Assam to the China side, then there will be great to the Brahmaputra, river Brahmaputra, sir. There will be no water in the river Brahmaputra, and it means we are losing everything, because Brahmaputra is our lifeline, our culture, our economy, our social, everything, our culture is depend upon the river Brahmaputra, sir. It is the very important issue in the interest of the people of the northeastern region and the interest of the country as a whole. I like to draw the attention of the union government to take up the matter immediately, seriously, and stop this project. Otherwise, future of the Assam, future of the northeastern region people will be the very black, sir. So it is our request, sir. Please look after this issue. Take up the issue very seriously with the China government. If necessary, take up the issue of the international platform, because this project is related to the course of people of Assam. Our identity is going to finish. Our culture is going to finish. Our economy is going to finish. Thank you. Brahmaputra. Thank you. Now I will call Mani Sri P. Wilson, urgent need for strengthening education and health care infrastructure in Tamil Nadu, not present. Mani Sri Mujibullah Khan, not present. Mani Sri Devasi Samant Rai, not present. Mani Sri Vida Mastan Rao, not present. Mani Sri Kartikeya Sharma, need to regulate private coaching institutes and protect the rights of students and parents. Mani Sri Kartikeya Sharma ji, not present. Now, Mani Sudha Murthy ji on old age problems and hospitals. Mani Sudha Murthy ji. Thank you, sir, for giving me an opportunity to talk about this. Janma Mrityu Jara Vyadhi. There are 4 things which one cannot escape. And old age is part of life. When you grow old, there are many problems which we come across, and these are my few suggestions to the government. I know government has taken care in many ways old people, but my suggestion is that every district in India should have a geriatric ward or geriatric hospital. Part of the department should have geriatrics department should be there, because geriatrics is different than normal medicine department. The doses are different, the food in quantity is different, and they are always accompanied by someone along with them. So the space constraints is also different. In urban area we do have, but by and large geriatric comes under physicians, and in a government hospital it's not possible to separate. So I request that we should design a separate department for that in a district level, so that the rural area people can come to the district area and take advantage of that. When you grow old, you always come with someone to the hospital, so you require additional space there. So when you design an OPD, you require 1:2. That means normal OPD is meant for 40 people for the adults. You require probably the same space for 20 people. They will come with someone. Same way, their waiting period should be reduced, so you should take care of the sitting arrangement.
When they are admitted, again the hospital bed should be in such a way that there should be more space because of the attenders. They need attenders. And when you would like to have such arrangement, then government has to train doctors, geriatric specialists, special nurses, helpers and other staff. It may be little expensive, but India has growth of old age people, and this should be, the government should consider this as a suggestion to improve the position of the old people, and particularly the medical field, so that the old age will be easy and comfortable. Thank you very much for giving me this time. Dhanyawad. Thank you, माननीय सुधा जी. माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ई फाइलिंग सेंटर. माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय को उठाना चाहता हूं. भारत सरकार ने निर्णय किया था कि देश में 7,100 ई फाइलिंग 4400 ई फाइलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे और 7,100 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की थी. उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भीतर भी खुलने थे. मेरठ में एक केंद्र खुला. यूं तो हमारी मांग है हाईकोर्ट बेंच की, वो अब भी रहेगी, लेकिन एक ई फाइलिंग सेंटर खुला था जो वादकारी अपने विषय को रख सकता था. वादकारी का हित सर्वोच्च और सस्ता और सुलभ न्याय, ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष है. इसके बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निर्णय किए. निर्णय में भी एक शब्द कहे कि आज के 15 दिन के बाद कोई हाइब्रिड सिस्टम से सुनवाई के लिए मना नहीं कर सकता. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक एक बार आदेश जारी किया सुनवाई का और 8 दिन बाद कैप्टन अबेंस में रख दिया उस आदेश को. यानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कैप्टन अबेंस रखने का काम इलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालय ने किया है. और उत्तर प्रदेश के लोगों को ई फाइलिंग सेंटर के माध्यम से जिले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करने, जमानत प्राप्त करने और सुनवाई का अवसर मिलता है, फैसला का अवसर मिलता है, उससे हमको वंचित किया जा रहा है. मेरठ में तो ई फाइलिंग सेंटर स्थापित भी हो गया. उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कैप्टन अबेंस रखा गया. मैं इस विषय पर अपनी बात रखते हुए सदन आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वो कैप्टन अबेंस का आदेश स्थगित हो और ई फाइलिंग सेंटर की व्यवस्था को चालू किया जाए. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालयों में कृषि विज्ञान पढ़ाने हेतु. सोलंकी जी बोल रहे हैं, खड़े हो रहे. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय का ध्यान आकर्षण चाहता हूं. हमारे देश के अंदर 80% लोग गांवों में निवास करते हैं और उनका व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है. खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है. और इस देश के अंदर कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि विषयों को भी पढ़ाने का काम महाविद्यालयों में और स्कूलों में होना चाहिए. माननीय उपसभापति महोदय, देश के अंदर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के हजारों विद्यालय संचालित है और साथ ही राज्य सरकार के विद्यालय भी हजारों की संख्या में संचालित है. मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और शिक्षक रहा हूं. मुझे लंबे समय तक इस बात का एहसास हुआ है कि जिस कॉलेज और स्कूलों में कृषि विषय को पढ़ाया जाना चाहिए वो अभी तक नहीं शामिल किया गया है. मैं CBSE में और NCERT के पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए मांग करता हूं, ताकि हमारे किसान के जो बेटा और बेटी है वो कृषि विषय को पढ़ पाएँ और जब वो घर की ओर लौटे तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से, उच्च तकनीकी तरीके से खेतीबाड़ी का काम कर सके और गांव के भाइयों और बहनों को तकनीकी रूप से खेती करने के लिए मदद कर पाएँ. मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और साथ ही हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके नेतृत्व में देश का किसान निरंतर तरक्की कर रहा है और खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा है. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि देश के नवोदय विद्यालयों में और केंद्रीय विद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित हाई सेकेंडरी स्कूलों में कृषि विज्ञान विषय को अनिवार्यतः पढ़ाने की मांग करता हूं. इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं. नर्मदे हर. धन्यवाद. माननीय सुमित्रा बाल्मीकि जी, प्रभावी परिवहन व्यवस्था.
सभापति महोदय, मैं जबलपुर के देश के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है जहां से देश के विभिन्न भागों तथा आसानी से प्रभावी परिवहन संभव है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रमुख केंद्र है। देश के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं, जिससे यहां लॉजिस्टिक और व्यापार के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। भारत सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गतिशील योजना, भारतमाला परियोजना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहलों के तहत देश में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक और कुशल बनाया जा सकता है। जबलपुर का नवीनीकृत और उच्च क्षमता वाला हवाई अड्डा क्वेश्चन और ओवर, क्वेश्चन और बस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन और माननीय क्वेश्चन नहीं